afternoon, salam, adab, sat sri akal. Welcome to another edition of Zera Family's Heart to Heart chat with Dr. Akhilesh Kumar. Now, something to say about Dr. Akhilesh Kumar, who is the founder, CEO at Eden Horticulture Services, editor in chief of Eden Horti magazine. Dr. Akhilesh Kumar has an extremely illustrious career. He is a plant biotechnologist, bioeducation, and now turned into an agripreneur after spending 15 years of his academic research in on transgenic development, GM Corp. He realized that he needed to focus on applied science. He spent 4 years on of this academic career as a young visiting scientist at Israel, in Israel, which is a very tough situation. But working at Volcani Center, Minister of Agriculture and Research Organization. His academic journey has been accomplished with a US patent and several international publications after having exposure to the Israeli startup. Wow. Ecosystem, he decided to return to India and worked as the first Center of Excellence Indo-Israeli project at Gharonda in Karnal, Haryana. Later, he founded his own consultancy firm called Eden Horticulture Services. Empower and employ the people, and in the process of promoting high-tech agriculture in India, Eden motto is to educate, empower, and employ the people. He has consulted several agriculture projects and more than 15 states of India. Wow. Israeli companies like ABZ Agri, Global Agriculture, Rural Development, etc. Volcani International Partnership is one of his leading partners. Eden Horticulture provides hands-on learning, consultancy, education projects, and conducts agri-studies tours. He also publishes a bi-monthly magazine with Eden North, RTN, Harang 2017/7 4778, to educate people about emerging potential in the agricultural sector. Dr. Akhilesh also lends a hand to budding entrepreneurs to develop innovate products in the agricultural domain through mentorship. Welcome you, Dr. Akhilesh. ये बहुत कम आपके बारे में बोला है, एक पन्ने में थोड़ी ना आपकी जिंदगी का बयान होगा, बहुत कुछ है जो आपने बयान करना होगा. तो वी वेलकम यू और आपके हाथ में हम डोर देते हैं आगे चलने के लिए. धन्यवाद अली भाई. और आप जेना फैमिली में ये मेरा पहला इंटरेक्शन है, and I hope it's just beginning and the first step. And I'm very thankful for the other जेना family members जो सारे इंटेलेक्चुअल्स को एक धागे में पिरो रहे हैं, और आज की कन्वर्सेशन में हमारे आप शिवाय भी जो लोग हैं उनको तहे दिल से मेरा धन्यवाद. डॉक्टर अखिलेश, अब आप आगे कुछ बयान कीजिए. जी, जैसा आपने बताया, आपने काफी कुछ बता दिया है. तो मेरी जर्नी कई राज्यों से होके गुजरी है, और जैसे फिलहाल मैं अभी बनारस में बैठा हूँ, और मेरी जो स्कूलिंग थी बेसिकली वो यहाँ से करीब 200 किलोमीटर दूर एक सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट है, टाउन एरिया, वहाँ पे मैक्सिमम पावर प्लांट है.
और मेरे पिताजी यूपी पावर कॉर्पोरेशन में थे। और तो कई छोटे छोटे पावर हाउसेस होते हैं, ओबरा, अनपरा, रेणुकूट, रेणु सागर, ये जो एरिया था। तो मेरा बर्थ प्लेस ओबरा रहा, फिर मेरी स्कूलिंग बड़े छोटे एरिया से रही, अनपरा और रेणु सागर से, जो बिरला के स्कूल थे, आदित्य बिरला के अलुमनाई भी हूँ स्कूल का मैं। और फिर जब हमें लगा कि नाउ इट्स टाइम टू ग्रेजुएशन, अब हमें माइग्रेट करना पड़ेगा बड़े शहरों की तरफ, देन माय फादर मूव टू बनारस। देन हमने अपना यहाँ पे एक बेस बनाया, और देन आई डिड माय ग्रेजुएशन फ्रॉम यूपी कॉलेज, वन ऑफ द वेरी फेमस कॉलेज, उदय प्रताप कॉलेज इन बनारस। और ये करीब 2000 में मैंने जब अपना ग्रेजुएशन किया, तो एट दैट टाइम बीटी कॉटन का बड़ा जोर था इंडिया में, बैसिलस तुंजेसिस, जो जीएम क्रॉप बोलते हैं। तो मुझे लगा शायद आने वाले समय में ज्यादातर फसलें एग्रीकल्चर में ट्रांसजेनिक क्रॉप ही होंगी या बीटी कॉटन होंगी। तो उसके चलते मैंने एमएससी बायोटेक्नोलॉजी किया, और बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी झांसी से। और उसका डिजर्टेशन मैंने आईआरई पूसा से किया था। तभी मुझे एग्रीकल्चर का ये मेरा कनेक्शन रहा। तो आई एम नॉट कोर एग्रीकल्चर स्टूडेंट, तो मैं बीएससी एमएससी एग्रीकल्चर नहीं हूँ। तो जब मैंने बीटी कॉटन का उस समय बूम देखा, करीब 2002-3 में इसका काफी न्यूज आता था, और हर एक एजुकेशन इंस्पायर के लिए होता है, पेपरों में पढ़ा और अपना कैरियर बना लिया कि ये बहुत अच्छा फील्ड आने वाले टाइम में, एडिटोरियल पढ़ के। पर इन द मीन टाइम मैंने उसी डायरेक्शन अपना कैरियर परसू किया। और मैंने जस्ट एमएससी किया ही था, उसके तुरंत बाद जिस लैब से मैंने अपनी समर ट्रेनिंग की, उस लैब से मुझे पीएचडी का ऑफर मिला, और मैंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल बायोलॉजी, इट्स अ सीएसआईआर लैब बेस्ड इन कैलकाटा। सो और वहाँ पे उस समय हमारे सीएसआईआर लैब में हम रिसर्च वर्क करते थे, और पीएचडी की डिग्री यूनिवर्सिटी देती थी। तो हमारे सीएसआईआर इंस्टीट्यूट का कोलैबोरेशन जादवपुर यूनिवर्सिटी से था, विच इज वन ऑफ द वेरी फेमस यूनिवर्सिटी इन इंजीनियरिंग सेक्टर। सो माय पीएचडी इज कॉन्फर्ड बाय द जादवपुर यूनिवर्सिटी। तो वहाँ भी मैंने जेनेटिक इंजीनियरिंग और कुछ प्लांट और मेडिसिनल प्लांट पे रिसर्च किया, और आई गॉट द यूएस पेटेंट, इंटरनेशनल पब्लिकेशन, रिसर्चर के लिए जो बेसिक नीड होती है वो करने के बाद मुझे लगा कि नाउ इट्स टाइम टू मूव टू द बिगर इंस्टीट्यूट ऑन एग्रीकल्चर में स्पेशलाइज्ड हो। तो जस्ट आफ्टर थीसिस सबमिशन आई मूव टू आईआरआई पूसा, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, आईआरआई, जो काफी वन ऑफ द प्रीमियर इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च इन इंडिया। And there I was working with the joint director research next to the director lab. So काफी फ्रीडम रही मुझे, शुरू से ही फ्रीडम में रह के काम करने की आदत थी। तो उसके बाद पीएचडी अवार्ड होने में टाइम लगता है, क्योंकि वाइवा होता है, हमारी पीएचडी अब्रॉड जाती हैं, कुछ क्वेश्चंस आते हैं, फिर थीसिस का वाइवा होता है। तो ऑल दिस टाइम टुक, एंड माय डिग्री वाज अवार्डेड अराउंड 2008। एंड देन आई स्टार्टेड टू अप्लाई फॉर पोस्ट डॉक्टरल फेलोशिप अब्रॉड, क्योंकि इंडिया में होता है इतनी हायर एजुकेशन के बाद अगर आपने पोस्ट डॉक अब्रॉड से नहीं किया तो थोड़ा अनसेटिस्फाइड लगता है। हाँ, सही बात। तो फिर मैंने ये अप्लाई करना स्टार्ट किया, और हमारा शास्त्री भवन में इंटर हुआ था अराउंड 2010 के फरवरी वगैरह में। एंड देन फर्स्ट टाइम आई फेस वेरी बोल्ड क्वेश्चन ऑन द पैनल, you have none of the degree in agriculture and you are applying in agriculture subject. It's very surprising. Then I also replied very straightforward. I tell I agree, I have none of the degree in agriculture, neither BSc or MSc. But since 2001, I am doing agriculture. And if I am not eligible to do agriculture research, then what I am doing at IRI Pusa. And IRI Pusa is a most premium institute. And probably they were from IRI Pusa itself. So, and I had a 3 invitation letter from Israel, Ministry of Agriculture. I told why they are inviting me to do agriculture research. So I believe as an agriculture person, you are dealing in terms of the kilogram and ton. But as a molecular biologist, I am dealing in the terms of nanogram and picogram. That is a molecular biologist. Yeah. But the only the difference that you are also working on the plant, I am also working on the plant. Our level of the research is different. I am working at the molecular level, you are working at the field level. So that is only different, but both are comes under the plant science. I thought nahi hoga, but just answer that should be straightforward. And surprisingly, I got selected. With only 2 people got selected. So I was selected first time for Israel. And I think one panelist was also, she was from Israeli embassy. And these people, they love to listen the bold reply. I think that what I later learned from Israeli culture. They like such kind of answer. So maybe that was a learning game.
तो इट वाज द फर्स्ट एक्सपीरियंस फॉर इंडिया में। जब भी मैं किसी को बोलता था कि मैं इजराइल जा रहा हूँ पोस्ट डॉक के लिए, तो लोग हंसते थे, यार और कंट्री नहीं मिला, यूएस कनाडा जाते हैं, डेवलप कंट्री जाते हैं, इजराइल में क्या रखा है। But those people who are very rich, intellectual scientists at director level, they always appreciated कि you are going the best country in the world Yes, yes. for agriculture research. हाँ, So मुझे भी ज्यादा कुछ नहीं पता था, क्योंकि हमारे इंडिया में जो न्यूज आती है वो गाजा पट्टी और इजराइल का जो वॉर होता है तभी हम न्यूज में आते हैं। हाँ, हाँ, Then it was good experience when I landed. Some scientists came to receive, and by air when I saw कि just after desert and in night time, such a beautiful place and landscaping and lighting and all those things. तो लगा कि नहीं, this is a developed country and I hope I will be having a nice time. हाँ, हाँ, It was good journey. मैं 2010 से करीब 2015 तक रहा वहाँ 4.5 year, और उसमें काफी वॉर भी देखी, 3 वॉर आई हैड, एंड आयरन डोम टेक्नोलॉजी कैसे काम करता है वो मैंने लाइव वो देखा। और वहां भी मैंने जो रिसर्च वर्क था वो पोटैटो पे था मेरा, और ट्रांसजेनिक अप्रोच पे ही था। क्योंकि रिसर्च में क्या होता है कि जब भी आप किसी चीज पे पब्लिकेशन हो गया, ये हो गया, तो उसी स्ट्रीम में ही गाड़ी चल पड़ती है। बट somehow I was not satisfied because by that time 2001 to 2014 I realized कि इंडिया में, आपको याद होगा, बीटी ब्रिंजल एक दूसरी क्रॉप आ रही थी, बैगन, जीएम क्रॉप, और काफी हो हल्ला हुआ था 2008 में। और फिर उस समय जयराम रमेश जी थे एनवायरमेंट मिनिस्टर, और उसको रिलीज नहीं किया गया। तभी मुझे लग गया था कि इंडिया में जीएम क्रॉप का स्कोप नहीं है, क्योंकि बीटी कॉटन एकमात्र क्रॉप थी, और जो हम पढ़ाई कर रहे हैं इसका एप्लीकेशन क्या है, जब फार्मर को अलाउ ही नहीं करना है तो हम क्यों बना रहे हैं। दैट वाज द फर्स्ट पजल इन माइंड कि जो कैरियर मैं परसू कर रहा हूँ उसका इंडिया में फ्यूचर नहीं दिख रहा था। देन आई वर्क इन इजराइल, नो डाउट, एंड देन इजराइल में काफी मतलब स्टार्टअप इकोसिस्टम को एक्सप्लोर करने का दूसरा अपॉर्चुनिटी 2011 में मिला। देयर इज वन नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, इजराइल एशिया सेंटर, मैं उसका एलुमनाई भी हूँ। तो मेरा सिलेक्शन उन लोगों ने किया। एक्चुअली दिस एनपीओ व्हाट दे डू, जो बच्चे साउथ ईस्ट एशिया या एशियन कॉन्टिनेंट से पढ़ने इजराइल में आते हैं, कैन बी एट एनी लेवल, नॉट ओनली द साइंटिस्ट, ये उनको स्क्रीन करते हैं, उनका इंटरव्यू लेते हैं कि आप कितने अच्छे कम्युनिकेटर हो, कितना कल्चर समझते हो, आपका फ्यूचर गोल क्या है, एंड दे वांट टू ग्रूम अस एज अ एम्बेसडर। वंस वी विल बी बैक टू इंडिया, वी विल बी डूइंग समथिंग बिटवीन आवर ओन कंट्री एंड इजराइल, सो वो कनेक्शन एजुकेशन के बाद ना टूटे। तो उन लोगों ने करीब 8 महीने का एक होता है, हम वीकेंड में वगैरह में मैनेज कर लेते थे। तो वहाँ की कनेसेट जो पार्लियामेंट में, आई हैव बीन 3 टाइम्स, वहाँ के लीडर ऑफ अपोजिशन से क्वेश्चन करना, स्टार्टअप से इंटरेक्शन करना, तो आई उसके थ्रू काफी मुझे बेसिक ग्रासरूट इनोवेटर कैसे होते हैं, क्या इनोवेशन है इजराइल की, मतलब अपार्ट फ्रॉम एग्रीकल्चर आई लर्न अ लॉट। उसके बाद मुझे लगा कि उसमें एक आपको बड़ी फेमस बुक है स्टार्टअप नेशन करके, इजराइल के बारे में। जो भी हमारे ब्यूरोक्रेट्स जाते हैं, आईएफएस लोग, इंडियन फॉरेन सर्विस, पहले वो बुक पढ़ते हैं। तो उसके जो राइटर थे सॉल सिंगर, उससे मेरा इंटरेक्शन हुआ, एंड ही टोल्ड मी वन थिंग विच यू नो हेल्प मी टू पेव माई पाथ, कि किस डायरेक्शन में जाना है। मतलब लॉट्स ऑफ पीपल वर आस्किंग, so he believed when I asked him ki, you know, I am doing my year postdoctoral fellowship as a scientist, and I'm planning to go back to India, but do you think that it will be the right opportunity as an entrepreneur? He said, Akhil, I think wherever the problem exists, there is an opportunity for the entrepreneur, and now it's up to you how you decide. I said, in agriculture is a full of problem in India. At every step we have problem. So he said, it's full of opportunity for you. Now it's up to you how you take it. So that's why I decided. My other friends, colleagues, they started to go other countries. Still, they are abroad and working as a researcher on some scholarship or some funding. But I was exceptional. I decided, no, I need to pay back to society. Whatever I learned, now it's time to deliver. So with that purpose, I decided to come back India in 2015. I came. And the funny part, ki during that time, the Indo-Israel project they started in India 2009-10. उसमें क्या कर रहे हैं, इजराइल की गवर्नमेंट यहाँ पे हमारे राज्य सरकारों के साथ मिलके अलग अलग राज्यों में अपना एक सेंटर ऑफ एक्सलेंस अराउंड 20-25 एकड़ का बनाते हैं, और वो टेक्नोलॉजी का डेमोन्स्ट्रेशन करते हैं, लाइक ग्रीन हाउस टेक्नोलॉजी, ड्रिप इरिगेशन, पल्स इरिगेशन, मल्चिंग, स्टैकिंग, लॉट्स ऑफ द प्लेसेस जो इजराइल में वेल वैलिडेटेड है, बट इंडिया में हमारे किसान रेनफेड एरिया में ही काम कर रहे हैं, और फर्टिगेशन या ड्रिप इरिगेशन तो सोचते हैं इससे पानी देने का जुगाड़ है, फर्टिलाइजर के बारे में आइडिया नहीं है।
तो लॉट्स ऑफ गैप्स आर देयर. सो एज अ मैटर ऑफ फैक्ट इजराइल गवर्नमेंट ने यहाँ बनाया तो उनका पर्पज ये नहीं था कि वो मतलब यहाँ की एग्रीकल्चर को ट्रांसफॉर्म करेंगे. डेमोन्स्ट्रेट कर रहे थे. डेमोन्स्ट्रेट इसलिए करते हैं या इसलिए कर रहे हैं कि उनकी जो एग्रीटेक कंपनीज है उनको काफी बिजनेस मिलता है उससे. जैसे अगर आप देखेंगे तो अभी हमारी हर पूरे इंडिया में ड्रिप इरिगेशन के ऊपर हैवी सब्सिडी है. तो सब्सिडी तो सरकार दे रही है, हम लगा रहे हैं, बट उस सब्सिडी का मैक्सिमम हिस्सा इन टर्म्स ऑफ द रॉयल्टी दैट्स गोइंग टू इजराइल. So this is another issue we need to understand in our country favor कि हम इतना कोई चीज अडॉप्ट कर रहे हैं तो इसका मतलब बाहर बेनिफिशियरी ज्यादा हो रहा है और हमारे यहाँ सब्सिडी का मिसयूज भी होता है. देन आई वर्कड 1 year विद द हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट ऑफ हरियाणा क्योंकि हमारे 2011 में पहला सेंटर ऑफ एक्सीलेंस करनाल में बना था और इस सेंटर के बारे में इजराइल में पढ़ता था. और जो एग्रोनॉमिस्ट था जिसने इसको एस्टेब्लिश किया 2 साल इजरायली एक्सपर्ट है करनाल में रहा. I met him in Israel. So it was like a flip-flop. Being Israeli, he was working in India, and being Indian, I was working in Israel. So he asked me, "You come to Karnal, and you will see we have developed very good Indo-Israel project, and that need to replicate at the farmer field." I said, "Okay, once I'll be back to India, certainly I will visit." And वही किया. मैं इंडिया वापस आते ही I took the point because by that time my Israeli friend he left India and he is now settled in Israel. बिकॉज उनका 3 साल का टेन्योर होता है डिप्लोमेट. तो एग्रीकल्चर काउंसलर भी चेंज हो गए और वो एक्सपर्ट भी मशाव के थे एक्सपर्ट हो चेंज हो गए. बट मैं आया फिर मैंने विजिट किया करनाल में. मुझे बहुत अच्छा लगा वो सेंटर रियली मीन्स. मैं IRE पूसा में था बट रिसर्च सेंटर और एक्सटेंशन सेंटर का अंतर मुझे तब पता लगा कि ये कैसे फर्क है. हमारे साइंटिस्टों की रिसर्च सिर्फ पब्लिकेशन और डेमोन्स्ट्रेशन प्लॉट तक सीमित रहते हैं. बट वो सेंटर ऐसा लगा कि हाँ वी हैव समथिंग टू डिलीवर फ्रॉम दिस सेंटर टू फार्मर या फार्मिंग कम्युनिटी. तो मुझे काफी अच्छा लगा. वहाँ पे काफी फुटफॉल था. काफी फार्मर्स आते हैं बाहर से, वो देखते हैं समझते हैं, उनको आपको एक्सप्लेन करना होता है. मैंने करीब 9-10 महीने वहाँ काम किया और एक्सटेंशन एक्टिविटीज को समझा कि इंडिया में एक्चुअली प्रॉब्लम है कहाँ. एंड देन आई रियलाइज कि प्रॉब्लम इज डिस्क्रिमिनेशन में होता है. लोग टेक्नोलॉजी तो देख लेते हैं लेकिन जब वो खुद करना चाहते हैं तो उनको हैंड होल्डिंग सपोर्ट नहीं मिलता है. सपोज आप किसी राज्य से आए या हरियाणा से ही आए, आपने वहां देखा ये चीज ऐसे है, बट आप खुद करने जाएंगे तो आपको पता नहीं ये चीज कहाँ से मिलेगी, कितने की पड़ेगी, क्या सब्सिडी है, क्या बेनिफिट है, हाउ टू ऑपरेट. सो बिकॉज ऑफ दिस दे आर अनेबल टू डिलीवर. वो चीज का अच्छे से ना इम्प्लीमेंटेशन फार्मर फील्ड पर नहीं हो रहा था और सब्सिडी एक गेम बना हुआ था कि ओनली फॉर द सब्सिडी पीपल आर टेकिंग. किसी को कोई यूनिट इकोनॉमिक्स का आइडिया नहीं है. देन आई रियलाइज कि दिस इज अ प्रॉब्लम इन इंडिया एंड इस प्रॉब्लम को लेके मैंने स्टार्टअप का अपना जो मॉडल था उसको बनाया. क्योंकि यही फर्क है इंडिया इजराइल के स्टार्टअप इकोसिस्टम में. यहाँ पे कोई भी नया वेंचर करते हैं उसको लोग स्टार्टअप बोल देते हैं, बट ऐसा नहीं होता है. स्टार्टअप किसी प्रॉब्लम स्टेटमेंट पे बनते हैं एंड आपको इनोवेशन के साथ उस पर काम करना होता है. तो मेरा प्रॉब्लम यही था कि हैंड होल्डिंग सपोर्ट इज मिसिंग. So I will be helping. I am not going to deal with any trade or any business कि कोई बीज बेचूं या कोई सीडलिंग बेचूं या ये करूं. I will just only impart the knowledge. So that's why it took long time. तो लोगों को नॉलेज की वैल्यू इंडिया में बहुत कम लोग करते हैं क्योंकि सोचते हैं कि जब हर चीज फ्री में मिल रही है एग्रीकल्चर में सो नॉलेज के लिए क्यों पे करते हैं, वो भी फ्री में मिलना चाहिए. एंड दैट्स वाई अराउंड 70% ग्रीन हाउसेज आर फेल्ड इन इंडिया एक्चुअली. Because but when I say that 70% greenhouse are failed, it means 30% are running successfully also. So ये सारी perception की बात है. तो इस तरीके से फिर हमने अपना प्राइवेट वेंचर लॉन्च किया. उसके थ्रू माय कोर ऑब्जेक्टिव एजुकेट, एम्पावर एंड एम्प्लॉय पीपल. क्योंकि हमारी यूनिवर्सिटी में जो बच्चों को पढ़ाया जा रहा है वो भी अप्लाइड नहीं है. सो आफ्टर हैविंग डिग्री आल्सो दे आर नॉट एबल टू गेट द जॉब. एंड अनदर थिंग कि फार्मर को एम्पावर हम नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि उगाना बहुत आसान है बट बेचना बहुत मुश्किल है. So that is another issue at farmer perspective. And of course, by skilling, by demonstration, by providing hand-holding support, by mentoring, we are empowering the people in the horticulture sector. जो लोगों को नहीं पता है वो मैं थोड़ा हाईलाइट करूंगा. एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर आर टू एस्पेक्ट इन एग्रीकल्चर. एग्रीकल्चर तो वास्ट इसमें सब आ जाता है, बट हॉर्टिकल्चर में फ्रूट, फ्लावर, हनी बी, मशरूम, वेजिटेबल्स, ये सारी स्पाइसेस, ये सारी चीजें आती हैं. तो आप ऐसे कह सकते हैं एग्रीकल्चर वो क्रॉप में आती हैं जो फील्ड क्रॉप है, जैसे गेहूं, धान, मक्का, सरसों, गन्ना, ये सारी जो इस पे MSP मिल जाती है. और हमारा इंडिया में
ट्रेंड यही है कि किसान एक क्रॉप ज्यादा करता है क्योंकि उसमें लेबर इंटेंसिव नहीं है। लेकिन ऑन द अदर हैंड यू सी हॉर्टिकल्चर क्रॉप, इसमें बहुत मेहनत लगती है तो लोग करना नहीं चाहते, और इन्वेस्टमेंट भी है अच्छी खासी इसमें। लेकिन एक बार अगर आप करें तो आपकी पर कैपिटा इनकम एग्रीकल्चर की तुलना में कहीं ज्यादा होती है। जैसे अगर आपको देखिए अभी टोमेटो कितना महंगा हो रहा है, अनियन कितना महंगा हो रहा है, तो ये सारी चीजें जो सप्लाई डिमांड का खेल है, तो उस हिसाब से अगर किसान खेती करे और ऑफ सीजन प्रोडक्शन एज पर द मार्केट डिमांड अगर हम पैदा कर पाए, सो वी कैन मेक अ गुड इनकम। तो मैं वही कर रहा हूँ। करेंटली आई एम डूइंग 3-4 प्रोजेक्ट साइमल्टेनियसली। एक प्रोजेक्ट हमारा लेह में चल रहा है, जो मैकेन कंपनी, आपको पता होगा, फ्रेंच फ्राई बनाती है, उनके लिए हम पोटैटो सीड प्रोडक्शन कर रहे हैं। वाई वर्किंग इन द ले, आपको पता है पोटैटो जो विंटर क्रॉप है, और हम अक्टूबर से मार्च तक उगाते हैं इसको प्लेन एरिया में, और पूरे गैंगेटिक एरिया में होती है। और लेकिन अब इसको कोल्ड स्टोर में रखते हैं और फिर अपना अक्रॉस द ईयर सप्लाई करते हैं। लेकिन आप ले में इस क्रॉप को उनके समर में, हमारे विंटर जैसा होता है, मई में लगाते हैं और सितंबर में हार्वेस्ट करते हैं। तो अगर हम मई में लगा के सितंबर में हार्वेस्ट करते हैं, तो वो हमसे दिया आलू पोटैटो, एक्चुअली ये सीड होता है जस्ट लाइक अ पोटैटो, ये बनासकांठा और ढीसा गुजरात ले जाते हैं, और गुजरात में जो सीड बेचते हैं, और गुजरात के फार्मर जब मई में, अप्रैल में या मार्च में हार्वेस्ट करता है, तो उससे वो फ्रेंच फ्राई बनाते हैं, और पूरे इंडिया में जो भी हम फ्रेंच फ्राई खा रहे हैं, इवन एक्सपोर्ट भी करते हैं। तो ये बाहर होता है गुजरात से ही। तो दिक्कत ये है कि हमारे लोगों को जो जैसे यूपी से मैं बिलोंग करता हूँ, मैं देखता हूँ यहाँ पे लोग बहुत आलू उगाते हैं, बट हमेशा विधानसभा के बाहर फेंक के प्रोटेस्ट करते हैं। बट उनको आलू के बीज का साइकिल नहीं पता, उसका बिजनेस नहीं पता। आपको प्रोसेसिंग वैरायटी का आलू का बीज नहीं मिलेगा यूपी में, लोग टेबल पर्पज का करते हैं। ये साइंटिफिक नॉलेज का गैप है कहीं ना कहीं से। इसी कंट्री में बाहर की कंट्रियां आके एग्रीकल्चर करती हैं और पैसा बनाती है, ले जाती हैं, बट हमारे फार्मर अभी भी एग्रीकल्चर से बाहर निकल के एग्री बिजनेस नहीं समझ पाते हैं। जैसे अगर मैं इसी का कहूँ, ये मैकेन कंपनी जब इंडिया आई थी, तो उन्होंने 7 स्टेट्स में दे हैव डन द फील्ड ट्रायल, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, उत्तराखंड, यूपी, बिहार, बंगाल, जो हमारा एरिया है पोटैटो कल्टीवेशन के लिए। बट फनी पार्ट, दे चूज द पोटैटो फर्स्ट टाइम इन गुजरात, जो हमारी यूनिवर्सिटीज में कभी भी लोगों ने नहीं सोचा था। एंड यू नो द फाइंडिंग वाज दैट कि जो हमारा 22 से 23 टन पर हेक्टेयर जो प्रोडक्टिविटी है इन गैंगेटिक प्लेन में, हरियाणा पंजाब में, ये गुजरात में जाके 46 टन पर हेक्टेयर होगी, मीन्स ऑलमोस्ट मोर देन डबल। तो सेम क्रॉप साइकिल, बट प्रोडक्टिविटी इज डबल। सो रीजन ये हुआ कि ऐसा क्यों हुआ, तो इसका पर्पज ये रहा कि जब हमारे यहाँ दिसंबर और जनवरी में फॉग होता है, तो प्लांट इज नॉट गेटिंग सफिशिएंट सनलाइट। लेकिन गुजरात में कोई फॉग नहीं होता है, तो दे आर गेटिंग प्लेंटी ऑफ सनलाइट, एंड टेम्परेचर इज आल्सो देयर। सो बिकॉज ऑफ मोर फोटोसिंथेसिस दे आर मेकिंग मोर बिगर ट्यूबर, एंड दैट इज गुड इन द फॉर द प्रोसेसिंग पर्पज। और सैंडी सॉइल वहां भी है, तो पानी भी कम होता है, वाटर कंटेंट, एंड दैट्स व्हाई दे गॉट द वेरी गुड रिजल्ट, एंड दे मेड अ such a huge business, and today they are exporting. So this is just one example why we are not able to make a good agri business, and we are our farmer is still deprived. तो ये जो नॉलेज का गैप है ना, यही मैं ओवरकम करना चाह रहा हूँ थ्रू माय कंसल्टेंसी फर्म। अनदर प्रोजेक्ट वी आर डूइंग इन द कच्छ में काफी हाई टीडीएस का पानी है, ऑलमोस्ट लाइक कोस्टल रीजन। सो दे वर ट्राइंग टू उसको ग्राउंड वाटर रिचार्ज करके हम कर ले, बट वो जमीन में जाके इतना कंसंट्रेटेड होता है कि उस टीडीएस पे आप वेजिटेबल नहीं कर सकते। आप वहाँ कैस्टर की फार्मिंग, कॉटन की और ऐसी चीजें, बार्ली, मिलेट्स, ये हो पाती, बट दे नीड वेजिटेबल क्रॉप ऑफ कोर्स फॉर देयर कंजम्पशन। So now this is another challenging project. So I am going to collect all rainwater. Rainwater is the best quality of water. And then by using the drip irrigation and pulse irrigation, I will try to grow the crop with this kind of water, the blending or some other method. Right? So this, like India mein hai ki agriculture is a different component, horticulture different, water irrigation, water consumption different. तो गवर्नमेंट ने पेपर पे कई डिपार्टमेंट बना दिए हैं अलग अलग स्ट्रीम के लिए। दिक्कत के सारे डिपार्टमेंट इन साइलोस काम करते हैं, जो सोल्यूशन या रेसिपी हमें फार्मर को देनी है, हम वो नहीं दे पाते हैं। एक प्रोजेक्ट मेरा पानीपत में चल रहा है, जहाँ पे हमने करीब 10 एकड़ का प्रोटेक्टेड और ओपन फील्ड कल्टीवेशन किया है। तो वी ग्रू स्ट्रॉबेरी और सॉइललेस कल्टीवेशन, सो दैट हम ऑफ सीजन में सैपलिंग बना के फार्मर को देके
और इस तरीके से प्लान करेंगे वेजिटेबल्स की उनको अच्छा रेट मार्केट मिल जाए बिफोर सीजन। सो दीज आर द माई एक्टिविटी। और अपार्ट फ्रॉम आई टोल्ड यू कि आई पब्लिश वन मैगजीन आल्सो, बिकॉज इंडिया में मैं एक्सटेंशन अकेले या घूम घूम के कई जगह नहीं कर सकता। तो जो इंटरेस्टेड लोग हैं उनके लिए मैं एक मैगजीन पब्लिश करता हूँ, एंड आई ट्राई टू ब्रिंग ऑल माई प्रैक्टिकल नॉलेज थ्रू दिस मैगजीन प्लेटफॉर्म, कि ज्यादा से ज्यादा लोग तक ये बेनिफिट पहुंचे। डॉक्टर साहब, कुछ जनता के सवाल हैं। जी जरूर सर। हाँ, एक तो आप कुछ ये ड्रिप इरिगेशन के बारे में बताइए। इसका तो जी। मैं गवाह हो चुका हूँ कच्छ में। हम्म, हम्म। कच्छ का सॉइल वाकई बड़ा सैंडी है, बहुत वो है, लोमी टाइप है, मतलब वहाँ पे कुछ ग्रो नहीं करता है। जब हम लोग गए थे जी। वहाँ पे तो मैनग्रोव का हम लोग ने चालू किया था, जी। इन एंड अराउंड मुंद्रा पोर्ट, वो जी। टू प्रोटेक्ट सी लाइफ। हाँ, एंड क्योंकि वो एरिया जो था एक सी लाइफ के लिए जो आपके, एक तो अ, बहुत रेयर आपको बर्ड्स मिलते हैं वहाँ पे। हाँ, और दूसरी चीज है जो आपका आपकी एक कहते हैं फिश है, प्रॉन फिश है, और ये जो है आपकी पॉम्फ्रेट, बहुत हम्म। वहाँ पे बढ़िया चीज बढ़िया किस्म की होती है। तो इसीलिए एक ये चीज हम लोगों ने की थी, करी थी। मगर ड्रिप इरिगेशन हमने देखा था, मगर ड्रिप इरिगेशन के बारे में कुछ समझ नहीं पाए थे कि वो भी इसराइल से उन्होंने किया था। हाँ, ये हमने देखा था कि जो कच्छ हमने शुरुआत में देखा है उससे बहुत बहुत हरा हो गया है। और ये ड्रिप इरिगेशन के बारे में थोड़ा सा समझाएंगे आप? ड्रिप इरिगेशन कैसे को हिंदी कैसे में टपका फंक्शन करता है? सिंचाई बोलते हैं। ये मतलब जी। कि सिंचाई होती है, मगर ये सिंचाई कितने फीट तक अंदर जाती है, या सरफेस पे रहती है, या जी। मतलब ये कितने, इसको इसका मतलब क्या सिस्टम है? और ये पाइप्स के थ्रू है, इंजेक्शन के थ्रू है, क्या है, इंजेक्टेबल है टाइप होता है? और या तो वो तो जैसे हमने एक ड्रिप इरिगेशन दार्जिलिंग में भी देखा था कि साउथ फेसिंग स्लोप था, उसमें क्या कहते हैं, ये एक बेम्बू का काटा और उस पे पानी भर दिया और आसपास राउंडर डाल दिया बेम्बू का, और रोज जाके भर देते थे, तो ड्रिप 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 हमारे हिसाब से वो होता था ड्रिप इरिगेशन। हाँ, मगर आपने एडवांस टाइप देखा है, तो इसके बारे में थोड़ा सा बताएंगे सर, और जो आपने इसराइल में देखा? इसराइल में क्या देखा, आप तो सब सब इंडिया में है। ये मजे की बात है कि हम इजरायली नाम लगा के सोचते हैं कि हमने इसराइल से लाए हैं, बट एक्चुअली एवरीथिंग इज नाउ इंडिया। हम्म आपको मैं बताऊं, जो इंडिया में सबसे बड़ी कंपनी है जैन इरिगेशन। हम्म ये जैन इरिगेशन का पूरा नाम 2012 में नान दान जैन इरिगेशन हुआ करता था। हम्म हम्म तो ये नान और दान इसराइल में कीबुत्ज सिस्टम है फार्मिंग के, वो हम्म कोऑपरेटिव फार्मिंग होती है, तो हम्म वो उनके इनोवेशन कीबुत्ज में होते हैं, हम्म लेकिन वो कॉमर्शलाइज करते हैं। हम्म तो उन्होंने बोला इंडिया इजराइल छोटा सा कंट्री, हम कितना मतलब प्लास्टिक की पाइप होती है इसको लेटरल बोलते हैं, कि हम इसकी मैन्युफैक्चरिंग तो इजराइल में नहीं कर सकते। तो हम्म। इजरायली पीपुल ऑलवेज इन्वेंट, बट उसकी मैन्युफैक्चरिंग किसी और कंट्री में करेंगे जहां पे उसकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कम आए। तो तो जूश इंडिया है। पीपुल आर वेरी इंटेलिजेंट। हम्म तो उन्होंने जैन इरिगेशन के साथ टाई अप किया महाराष्ट्र में, हम्म और उसकी मैन्युफैक्चरिंग यहाँ होती थी, लेकिन जो भी ड्रिप के अंदर जो लेटरल में हमारे वो ड्रिपर लगते थे उसका पेटेंट इजराइल के पास होता था। हम्म। वी आर जस्ट मैन्युफैक्चरिंग हब। तो उसी की वो तो काली रॉयल्टी पाइप लेते में हैं। ऐसे, जी वही सारा गेम है। हाँ और आई हैव बीन टू देयर R&D सेंटर। अभी तो हाँ इंडिया में 3-4 कंपनियां काम कर रही हैं, उसमें से जो लीडिंग कंपनियां वो सारी इजराइल की हैं। जैसे जैन इरिगेशन हाँ ने हाँ 2012 में सारे शेयर खरीद लिए, तो हाँ अब हाँ नाम हट गया, बट वो इजरायली फर्म ही है। हाँ दूसरी कंपनी है नेटाफिन, तीसरी कंपनी है रिवोलिक्स, हाँ एक हाँ चौथी कंपनी और भी है, वो उतनी फेमस तो नहीं है, बट ये हाँ 3 टॉप इरिगेशन कंपनियां हैं। हाँ हाँ अब इरिगेशन में क्या है, इसको ड्रिप इरिगेशन को बोलते हैं, बूंद बूंद पानी जाता, तो हिंदी में इसको टपका सिंचाई बोलते हैं। हाँ 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 सपोज अगर एक आदमी है, अगर आप मेरे कहोगे अभी जैसे मैंने पानी पिया, तो मेरा मुंह छोटा है ओरिफाइस, और हाँ मुझे अगर पानी पीना तो मैं ग्लास से पीऊंगा तो मैक्सिमम पानी मेरे पेट में जाएगा। हाँ हाँ। अगर मैं बाल्टी से पीऊंगा तो तो मेरा को जितना कैपेसिटी मुंह में जाएगा सब प्लस पानी बेकार होगा। तो बराबर। ऐसे ही प्लांट के फील्ड में होता है कि एक प्लांट यहाँ एक प्लांट यहाँ है, इसकी जड़ में पानी चाहिए, इसकी जड़ में पानी चाहिए, हम्म बीच का पानी बेकार जा रहा है। हम्म तो ये जो पाइप होती है इसमें जो ड्रिपर होते हैं, ये 30 सेंटीमीटर 40 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे होते हैं, हम्म एज पर योर स्पेसिफिकेशन। हम्म जितनी गैप प्लांट के बीच में होगी उतना गैप का आपको लेटर लेना पड़ेगा।
फिर उसमें बूंद बूंद पानी देते हैं, हम्म, जितना प्लांट को चाहिए उतना ही पानी। तो हम्म, आपका 40 से 50% वाटर रिक्वायरमेंट कम हो जाता है किसी भी प्लांट को उगाने में। हम्म, जो हमारा रेनफेड सिस्टम है कि आपने नाली बनाई और पूरा बाढ़ की तरह खेत में पानी ना निकाल ना दिया। ना, हाँ नहीं, अभी आप देख रहे हैं कितना वाटर लेवल हमारा गिर रहा है, बोरवेल का पानी है, पानी की कोई वैल्यू तो है नहीं इंडिया में। तो नहीं, लोगों ने खेती में बहुत पानी लोगों ने यूज किया, अभी भी करते आ रहे हैं। मैं हरियाणा में हूँ तो यहाँ पे पूरा गेहूं चावल का साइकिल है, सब फ्लड इरिगेशन पे ही होता है। हाँ तो हाँ इस तरीके से सबसे बड़ा एडवांटेज ड्रिप इरिगेशन का है कि आपकी वाटर रिक्वायरमेंट को कम कर देता है, हाँ हाँ नंबर एक। हाँ, बहुत नंबर दो, किफायती ये है, सिर्फ बहुत पानी की जी। और बहुत। दूसरी चीज, ये पानी के साथ साथ आपके खाद या फर्टिलाइजर की भी रिक्वायरमेंट को कम करता है। जैसे हम्म, आपने देखा होगा बंगाल में या हर जगह जो लोग धान गेहूं लगाते हैं, वो हाँ ब्रॉडकास्टिंग करते हैं, यूरिया है ना हाथ में लेके हाँ पूरे खेत हाँ में हाँ डाल रहे हैं। हाँ तो फिर वही बात, एक प्लांट है, यूरिया चाहिए जड़ में, हाँ आयनिक फॉर्म में, हाँ, लेकिन हम पूरे खेत में डाल रहे हैं। तो जो प्लांट के बीच में यूरिया है वो एक्सेस यूरिया, और वो पानी के साथ सर्कुलेट डाउन हो रहा है। जी हाँ तो हमारा ग्राउंड वाटर भी बेकार हो रहा है उससे। लेकिन हाँ इसमें क्या है, ड्रिप इरिगेशन में यूरिया जो होता है या कोई भी फर्टिलाइजर है, क्योंकि हाँ इसमें काफी कॉम्प्लिकेटेड फर्टिलाइजर भी हम डालते हैं, तो हाँ हाँ, प्लांट के जड़ में ही निकलता है, जहां अच्छा, जरूरत है वहीं पे हम खाद दे रहे हैं। हाँ तो आपका पानी की भी बचत है, आपके फर्टिलाइजर की बचत है। हाँ, तीसरी चीज कि जब आप पानी इस तरीके से देते हैं तो उसमें नमी ज्यादा नहीं होती है खेत में, अच्छा, कम पानी होता है। तो नमी कम होने से आपकी ह्यूमिडिटी कम होती है, हाँ हाँ ह्यूमिडिटी कम होने से फंगस प्लांट में कम लगते हैं। हाँ तो हाँ, जनरली आप अगर आलू के खेत में देखेंगे या कहीं भी देखेंगे, हाई टेम्परेचर और हाई ह्यूमिडिटी, ये हाँ दो हाँ, जब भी होगा तो फंगस बहुत आते हैं, और फिर हम फंगीसाइड का स्प्रे करते हैं। तो आपका अगर माइक्रो क्लाइमेट अगर कंट्रोल है तो आपकी ये सारी चीजें बचत हो जाती हैं। अच्छा, इससे काफी दूर दूर एरिया में आप खेती कर सकते हैं कॉमर्शियल स्केल पे। तो एशिया का सबसे बड़ा इरिगेशन का प्रोजेक्ट कर्नाटका में गवर्नमेंट ने लगाया, रामथल करके जगह है, आप गूगल करेंगे मिल जाएगा। तो उन्होंने कई जैन इरिगेशन और नेटाफिम ने मिलकर किया, कई सौ हेक्टेयर में उन्होंने सारे फार्मर को ड्रिप से जोड़ दिया, सेंट्रल सिस्टम बना के। अभी इंडिया में प्रॉब्लम क्या है कि छोटे छोटे किसान हैं, तो 2 एकड़ 2.5 एकड़ तक की करते हैं। बट इस चीजों को मजा या असली बेनिफिट तब है कि आप 50 एकड़ में बाय यूजिंग ड्रिप इरिगेशन घंटों में आप पूरे इरिगेशन कर दें। अब इसमें अगला स्टेप आया ऑटोमेशन का। ऑटोमेशन जैसे मान लीजिए मेरा 50 एकड़ का फील्ड है, मैं 50 एकड़ में एक साथ पानी नहीं डाल सकता, क्योंकि ये सारा प्रेशर प्रेशर डिपेंडेंट इरिगेशन है। तो मैंने 2 एकड़ का पहले प्लांट लगाया, उसमें मैं टाइमर फिट कर दूंगा कि ये मेरी ये क्रॉप है और इतने से इतने बजे तक ये इरिगेशन होना है। उसके बाद मैं उसमें फीडर डाल दूंगा कि उसके बाद ये 6 एकड़ में होना है, उसका फर्टिगेशन शेड्यूल ये है। तो मुझे जस्ट मोबाइल में फीड करना है डेटा, और मैं लगा के अपने घर चला जाऊंगा, कोई लेबर की जरूरत नहीं है, कुछ नहीं है, और वो अपना टाइम टू टाइम अलग अलग रेसिपी अलग अलग खेत में देता रहेगा। दैट इज ए नेटा जेट और ऑटोमेशन जो इसराइल में होती है, बट इंडिया में अभी भी बहुत ही छोटे किसानों के पास ये संभव नहीं है, क्योंकि इस पे कोई सब्सिडी नहीं है। लेकिन जो बड़े किसान हैं वो लोग यूज करते हैं, इनके पास बहुत बड़ी लैंड होल्डिंग है। डॉक्टर तो साहब ये ये सब जो है, फायदे हैं हाँ, ड्रिप के। जी। ये जो है, इसका सोर्स वाटर कौन सा होता है, कैसा टाइप ऑफ वाटर होता है ये, ड्रिप मतलब इरिगेशन में ड्रिप इरिगेशन में प्योर वाटर चाहिए या थोड़ा सा मिक्स चाहिए या कुछ? देखिए, इंडिया में हम बेसिकली 3 सोर्स ऑफ वाटर होते हैं। हाँ एक तो हाँ बोरवेल, हाँ हाँ ठीक है, एक हाँ, होता है नदी का पानी, हाँ हाँ, नदी का, और एक होता है आपका कि मतलब बरसात में सीजनल है या कुएं का पानी ले लिया, ऐसे ले लिया। गांव में यही 2-3 सोर्स है। तो जनरली जो नदी का पानी होता है, जनरली दैट इज अ गुड क्वालिटी ऑफ वाटर, उसका हाँ हाँ, वाटर का टीडीएस ज्यादा नहीं होता है। नहीं, अगर वाटर का टीडीएस ज्यादा नहीं है हाँ तो हाँ, फिर आपके पास ऑप्शन ऑफ ग्रोइंग मल्टीपल क्रॉप है। अगर आपको वाटर का टीडीएस ज्यादा है तो आपके पास लिमिटेड ऑप्शन हो जाते हैं, क्योंकि हर क्रॉप की एक सॉल्ट टॉलरेंस कैपेसिटी होती है। जी तो जी जैसे जी, अगर आप हरियाणा का एग्जांपल मैं दूं, तो ये यमुना का बेल्ट है जो ऊपर जीटी बेल्ट हाँ है, हाँ आप हाँ दिल्ली हाँ से हाँ हाँ चंडीगढ़ जाएंगे, हाँ यहाँ पे हाँ हमारा बोरवेल वाटर अच्छा है, हाँ तो हाँ, हम यहाँ पे कोई भी क्रॉप उगा सकते हैं। हम्म, लेकिन जैसे आप रोहतक, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी या सदर्न आप पार्ट ऑफ हरियाणा आएंगे, तो हम्म, क्योंकि यमुना से डिस्टेंस ज्यादा है, तो यहाँ पे बोरवेल वाटर का टीडीएस ज्यादा है। तो इसलिए वहां पे आपको गेहूं, सरसों, बाजरा ऐसी मोटी दाल वाली फसलें मिलेंगी, हाँ हाँ, सब्जियां लोग नहीं करते हैं। तो वाटर का टीडीएस इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू द क्रॉप सिलेक्शन। जो अच्छा, सरकारें कहती हैं क्रॉप डाइवर्सिफाई करो, हाँ 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 इतना हाँ, आसान नहीं है। फार्मर्स नहीं इज नहीं नहीं नॉट इडियट, फार्मर्स नो नहीं, कि मेरी लैंड पे मेरी जो पानी में क्या हो सकता है, इस हाँ हिसाब से वो करता है। हाँ तो बेसिकली अगर आप बोले तो 600-700 टीडीएस इज गुड टीडीएस हाँ फॉर एग्रीकल्चर पर्पज। हाँ तो रेन वाटर का उतना मिलता है, या कहीं बहुत अच्छा पानी है तो वहां मिल जाता है। हाँ, 1200 टीडीएस तक चल जाता है खेती में।
लेकिन जहाँ पे मैं कच्छ में प्रोजेक्ट कर रहा हूँ वहां पे करीब 3,000 से ऊपर TDS है। तो हाँ, डिपेंड किया आप किस सॉल्ट, लोकेशन पे हैं और उसको आप कैसी आरओ खेती कर रहे हैं। आरओ बनाते हैं, रिवर्स ऑस्मोसिस करते हैं सर The उसमें? RO is not feasible in agriculture, but yes, it is RO is one of the solution. हाँ हाँ लेकिन अभी कई टेक्नोलॉजी आ गई हैं। हाँ हाँ RO का मैं एग्रीकल्चर में, क्योंकि मेम्ब्रेन का काफी खर्चा होता है, तो हाँ आपकी हाँ, कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन बढ़ जाएगी। अगर बहुत। आपका छोटा लैंड है तो आप कर सकते हैं, बड़े लैंड पे इकोनॉमिक वायबल नहीं है RO। हम्म। बट मैं बता दूं, कुछ कंपनियां इसराइल की हैं, देयर आर सम अदर मेथड टू ट्रीट दिस। इंडिया में ऐसी कोई R&D नहीं हो रही। अगेन ये गैप है कि जो बेसिक प्रॉब्लम उस पर रिसर्च कम होती है और हम कॉस्मेटिक रिसर्च ज्यादा करते हैं। सैलिनिटी कैसे तो एक हटाते हैं आप? कंपनी है सैलिनिटी कैसे सेलेनिटी, हटाते हैं? हाँ, उस मतलब वो जब देर आर द सॉल्ट, प्रोसेस। हाँ सॉल्ट हाँ, कंटेंट। देर आर द सम प्रोसेस, बट हाँ, अभी तो मेरे पास कोई तरीका नहीं इंडिया में। जो मैं कर रहा हूँ, मैं अभी रेन वाटर हार्वेस्टिंग कर रहा हूँ, क्योंकि रेन अच्छा। वाटर हार्वेस्टिंग का TDS 100 से ज्यादा नहीं होगा। तो मैं हम्म। क्या करूंगा, कुछ अच्छा पानी लूंगा और कुछ हाई TDS पानी का ब्लेंडिंग कर दूंगा, उसको एवरेज ले आऊंगा, फिर उस हम्म पानी को यूज करूंगा। तो हम्म दिस इज माई इंडियन जुगाड़। लेकिन देर आर देर आर टेक्निक्स। जैसे हाँ कंपनी है, आप IDE कंपनी करके हाँ इजराइल हाँ की, हाँ हाँ, we are also in touch with them. जी They are making lots of salt production from the हाँ, seawater, जी 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 जी, and again they are using that salt to purify the seawater. बिल्कुल। So those kind of technology we needed in India. अब समझ में नहीं आता ये कौन लाएगा कौन करेगा, बट ऐसे रिसर्च हो रही है। सी वाटर इज नॉट वेस्ट। जैसे अभी मैं कच्छ में कर रहा हूँ, सो लॉट्स ऑफ पीपल आर मेकिंग KCl, पोटेशियम क्लोराइड, हाँ और हाँ, उसमें वो इफ्को वाले खरीदते हैं और उससे फर्टिलाइजर बना के बेचते हैं। बताइए। हाँ, सो सी वाटर की भी अपनी वैल्यू है, बहुत सॉल्ट है, नेचर ने सबको बैलेंस दे रखा है। हम्म इट्स ओनली द ब्रेन कि आप अपने रिसोर्सेज को कैसे यूज करते हैं। जैसे आपने बोला आपने कच्छ को डिजर्ट या एरिड क्लाइमेट में देखा था, हम्म, मैं आपके नॉलेज के लिए बता दूं, पता नहीं आप कितने साल पहले, आज की डेट में कच्छ में हब हो चुका है पोमग्रेनेट का। तो इस ह्यूज एरिया दे आर ग्रोइंग पोमग्रेनेट, हाँ हाँ, और द चीकू, केसर, चीकू केसर चीकू, आम, चीकू चीकू, और बिल्कुल। खारिक, खारिक। मैं 2009 में गया था। हाँ रे की जी, तो अभी भी इधर अनार का काफी बड़ा एरिया है, खजूर का बहुत बड़ा एरिया है, हाँ अमरूद लोग लगा रहे हैं, हाँ हाँ केसर आम लगा रहे हैं, हाँ ड्रैगन हाँ फ्रूट लगा रहे हैं, क्योंकि जो हम बोलते हैं पूरे इंडिया में कि लैंड बैंक इज अ बिग कंस्ट्रेंट इन इंडिया, हाँ बट कच्छ में ये नहीं है। वहां पे एक एवरेज इंसान के पास आपको 50 एकड़ लैंड मिल जाएगी। सो एक ठीक ठाक अगर किसान है तो हाँ आई नो द पर्सन, सम ठक्कर फैमिली, दे हैव मोर हाँ, देन 1200 एकड़ ऑफ लैंड अब एंड दे आर बताइए। डूइंग एग्रीकल्चर। हाँ वो 3 4 भाई हैं अलग अलग। तो दिस इज अ स्केल, एग्रीकल्चर इज अ गेम ऑफ स्केल। हाँ आज हाँ हमारा किसान बिजनेस नहीं कर पाता क्योंकि उस स्केल पे काम नहीं कर रहा है। उसका सोल्यूशन ये कोऑपरेटिव मॉडल में काम करे, बट हाँ हाँ कोऑपरेटिव मॉडल अगेन इज नॉट वेरी वायबल। एक अमूल कोऑपरेटिव बहुत हाँ सक्सेसफुल हाँ रही, हाँ बट एग्रीकल्चर में आई थिंक दिस इज ओनली कोऑपरेटिव मॉडल कैन सेव आवर इंडियन फार्मर। बट हाँ उसमें भी हैंड होल्डिंग सपोर्ट चाहिए। हाँ इतनी हाँ। कॉम्प्लिकेशंस है कि हर आदमी नहीं कर पाता है। नहीं, वो खारिक का भी वहां पे ग्रोथ है, खारिक डेट्स। जी, खारेक बांग्लादेश एक्सपोर्ट करते हैं, हाँ और हाँ, 72 घंटे में आपके कच्छ से पूरी ट्रक जो है बांग्लादेश बॉर्डर पहुंच जाती है। बताइए 72 घंटे में। जी, और आपने मैंने कभी पूछा। वहाँ का पेड़ा खाया सर? जी, पेड़ा? पेड़ा, पेड़ा तो शायद नहीं खाया है मैंने, मिठाई उठाई तो कई खाई हैं, हाँ, फ्रूट्स मिठाई। खाए हैं काफी वहाँ उनके। का पेड़ा बड़ा फेमस हाँ, है, एक भोजपुर का पेड़ा अच्छा, है। जरूर। और एक अच्छा, खासियत और आपको बताऊं कि वहाँ के घरों में जी, ताले नहीं लगते हैं। ओह, हाँ दिस इज इम्पोर्टेंट। अच्छा, हाँ। और आप भुज कभी गए होंगे सर, भुज? हाँ, पूछ गया। तो भुज की जमीन रास्ते में आप देखिए, बिल्कुल ब्लैक सॉइल है, हम्म, ब्लैक रिच सॉइल है। तो वहाँ पे केसर आम भी, बस अब देखिए केसर आम तो बड़ा फेमस है, अभी आ गया है। और यहाँ पे 250 रुपये किलो जी, बिक रहा है, वो या 300 रुपये। यस। वहाँ पे हम लेते थे 35 40 रुपये किलो, उससे ज्यादा नहीं। और नहीं सर, पेटी अभी के, 100 to 120 है, अभी मैं हाँ, खुद लेके आया हूँ। वन कहाँ? ट्वेंटी तक इजिली अच्छा, फार्मर को मिल जाता है। गुजरात से? जी, हाँ कच्छ से ही। हाँ, कच्छ से। तो ये अब तो जमाना बदल गया ना, 35 का। जी, मगर एक चीज बहुत हाँ, इफेक्ट कर रही है सर, उसमें ये जो है, हम्म, ये दो पावर प्लांट्स हैं। तो जो वो आपका कोकोनट खेती होती थी, उसमें जी, दाग आ रहा है, खारिक पे दाग आ रहा हम्म, है। अब ये पोल्यूशन की वजह से है, किसकी वजह से है मालूम नहीं। हाँ, जो खारिक पहले होती थी और जो मजा आता था, वो आम में भी हल्का हल्का दाग आ रहा, काला काला। तो ये समझ नहीं आया है अभी। वो कहते हैं, वो गुजराती तो कहते हैं, कच्छी कहते हैं कि ये तो जी फ्लावर प्लांट की वजह से है हमारे यहाँ।
हालांकि पावर प्लांट इनको काफी फायदा कर रहा है, मगर ये चक्कर है। देखिए सर, ये तो बड़ी कॉमन सी प्रॉब्लम है, अब उनको एहसास होने लगा है। हम्म, 2002 में जब वहां पे अर्थक्वेक आया था, हम्म, उसके बाद जो टैक्स हॉलीडे हुआ है, तो हम्म, मैक्सिमम इंडस्ट्रियलाइजेशन वहाँ हुआ है, इन्वेस्टमेंट आए, इंडस्ट्री लगी है वहां बहुत पे। बहुत, जो हाँ। मेरे पिछले क्लाइंट थे, दे वर इनटू कोक मैन्युफैक्चरिंग, तो हम्म, ऑस्ट्रेलिया से कोक आते थे शिप, और वो कंप्रेस करके हाई क्वालिटी का कोक बनाते थे, जो हम्म, गैलेंट, जिंक, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज में जब वो आयरन ओर पे काम करती है, उनको हाई क्वालिटी का कोक चाहिए होता है, इसका मेल्टिंग पॉइंट 1200 डिग्री होता है। हाँ, हाँ, तो वो उनका उस चीज का बिजनेस था। हाँ, सो हाँ, लॉट्स ऑफ टाइम जीपीसी, गुजरात पोल्यूशन बोर्ड का काफी सर्कुलर आते थे, हाँ, 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 कितना आपका धुआं उड़ रहा है, ये तो वो तो हाँ, इफेक्ट है, क्योंकि हाँ, अनरेगुलेटेड हुए हैं इंडस्ट्रियलाइजेशन, ये हाँ, उसकी चीजें हैं, और अब वो रियलाइज भी करते हैं। तो हम्म, ये टैक्स हॉलीडेज की वजह से है कि शायद उसमें कुछ रिस्ट्रिक्शंस के साथ इंडस्ट्रियलाइजेशन होता तो बेहतर होता, बट हाँ, ये प्रॉब्लम मैं कह सकता हूँ, ये इकोलॉजी और इकोनॉमी दोनों साथ नहीं चलती, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। नहीं, या नहीं, तो नहीं, आप बिल्कुल, इकोलॉजी देख बिल्कुल, बिल्कुल, लीजिए या बिल्कुल, इकोनॉमी बिल्कुल, हाँ, देख हाँ, लीजिए। हाँ। अगर इकोलॉजी देखोगे तो इकोनॉमी भी नहीं पड़ेगी। तो बिल्कुल। बड़ा बड़ा अच्छा। बट ये मैं मानता हूँ कि उस एरिया में सर, जिस हिसाब से, बिकॉज कोस्टल स्टेट्स आर ऑलवेज रिच इन हम्म, टर्म्स ऑफ द एक्सपोर्ट पोटेंशियल, हम्म, महाराष्ट्र बहुत आगे है, गुजरात अभी भी अनटैप एरिया है, गुजरात में बिल्कुल भी एक्सपोर्ट का उतना नहीं हो हम्म, पाया, जो भी वहां से वो जा रही है आपकी हम्म, बासमती राइस का एक्सपोर्ट हो रहा है, वो सब जी, मुंड्रा कंडला पोर्ट से हो रहा है। हाँ, लेकिन गुजरात की जो अपनी कमोडिटी है, जैसे अनार हुआ और जी, आम हुआ, हाँ, हाँ, आपने खजूर की बात की, खजूर बांग्लादेश आता है, दुबई नहीं आता है, तो हाँ, वो उस हिसाब से नहीं हो रहा, क्योंकि वो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, पैक हाउसेस नहीं है। नहीं, तो उसकी बड़ी जरूरत है, ताकि हमारे गुजराती किसानों भी हम्म, महाराष्ट्र के किसान की तरह अपनी इनकम बढ़ा पाए। आप इंडियन रुपीज में उगाओ और डॉलर में आप बेचो तो ज्यादा ही जी, अच्छी इनकम है। बट ड्यू हाँ, टू आई थिंक पॉलिटिकल विल पावर, अभी भी बहुत बड़ा पोटेंशियल है, एंड आई एम ट्राइंग टू डू दिस प्रोजेक्ट इन नेक्स्ट 2 ईयर, कि कम हाँ, से कम मैं परमानेंट का एक इंटीग्रेटेड पैक हाउस लगा के वहाँ हाँ। दुबई और यूरोप कंट्री में मैं अनार जो एक्सपोर्ट कर पाऊँ, तो वहाँ के लोकल लोगों को हेल्प मिले, अनार क्या क्योंकि बारह, लोकल पीपल आर एबल टू ग्रो। बारह मास का वो हो गया है कच्छ में, क्योंकि अनार अनार सर सीजनल नहीं है 12 ना। मास का अनार एक्चुअली इज टोटली डिपेंड, आप 12 महीने उगा सकते हैं, उसका जो हार्वेस्टिंग विंडो होता है वो कटिंग पे डिपेंड करता है। हाँ, तो हाँ, जनरली इन 1 ईयर टू हार्वेस्टिंग पीपल कैन टेक, हाँ, एक हाँ, जो आती है सितंबर अक्टूबर में आती है, एक जनवरी फरवरी में आती है। हाँ, हाँ, तो हाँ, जो वहां पे जो विंटर का अनार है जनवरी फरवरी का, वो काफी अच्छे क्वालिटी का होता है, मतलब उसमें सन स्कॉर्चिंग नहीं होती है। हम्म, लेकिन जो अनार गर्मी वाला है, सितंबर वाला, हम्म, उसमें जो स्किन होती है वो बर्न हो जाती है, उसके जो हाँ, दाने हैं अंदर हाँ, एरिल्स, वो हाँ, हाँ, सफेद रह जाते हैं, तो उसकी कमर्शियल वैल्यू नहीं है। हाँ, तो हाँ, दिस इज हाँ, अ वन प्रॉब्लम देयर, वहां पे लोग शेड नेट या बैगिंग ऐसी चीजों, प्रिसीजन जो इसराइल की टेक्नोलॉजी है उसका हाँ, यूज नहीं करते थे, या जस्ट टोटली डिपेंडेंट की जैसा बारिश होगा जो होगा देख लेंगे। हाँ, तो हाँ, ये सब वहां पे कमियां हैं जहाँ पे टेक्नोलॉजी का इंटरवेंशन चाहिए। हाँ, सो आई हाँ, एम ट्राइंग टू मेक सम काइंड ऑफ कमर्शियल वैल्यू ऑफ इवन द व्हाइट एरिल, जैसे जो सफेद दाने हैं, अगर हाँ, आप हाँ, उसका ऑयल निकाल लें तो हाँ, दैट हाँ, इज अ वेरी गुड एंटी कैंसर प्रॉपर्टी, हाँ, उसकी हाँ, फार्मा इंडस्ट्री में काफी रिक्वायरमेंट है। बिल्कुल। तो अनार के पील का भी बहुत बड़ा एक वैल्यू है, कमर्शियल वैल्यू है। तो हम्म, ऑल दीज थिंग्स फार्मर इज नॉट अवेयर, फार्मर कैन ग्रो, ट्रेडर आते हैं वो तो तोड़ता भी नहीं, ऑक्शन में 60 रुपए किलो बेच दिया, और वही अनार हम दिल्ली में आके 200 रुपए किलो खरीद रहे हैं। तो दिस इज ऑल सिक्स हाँ, सेवन वही, लेयर ऑफ वो द वैसे सप्लाई मेन चेन। में देखिए, कच्छ के अलावा और कहाँ पे अनार की ग्रोथ होती है और हार्वेस्टिंग। शोलापुर, महाराष्ट्र इज द बिगेस्ट हब। हाँ, महाराष्ट्र में जो हाँ, नासिक शोलापुर ये एरिया है वो हाँ, बेस्ट ग्रोइंग एरिया है, बट हाँ, उनके सारे कम्युनिटी मैक्सिमम एक्सपोर्ट होते हैं, क्योंकि हाँ, उसकी हाँ, पिंक स्किन होती है, साइज में बड़े होते हैं, दे हाँ, हाँ, हैव अ गुड सप्लाई चेन। हाँ, बहुत बड़े सह्याद्री होते एग्रो का आपने नाम सुना होगा, दे आर एक्सपोर्टिंग। हैं। यू वर सरप्राइज, मींस आई एम अ मीडिया पार्टनर ऑफ मेनी इंटरनेशनल एग्जीबिशन, तो मैं ताइवान थाईलैंड भी जाता रहता हूँ। तो वहां जाके मैंने देखा ताइवान में इंडिया से अनार था, और जब मैंने पूछा कि अनार कहाँ से आया, इंडिया का फ्लैग लगा है वहाँ, हर कंट्री का लगा रहता है, तो उन्होंने बताया महिंद्रा एंड महिंद्रा ने भेजा है। महिंद्रा एंड महिंद्रा कंपनी हम क्या समझते हैं इंडिया में, बट दे आर डूइंग एक्सपोर्ट आल्सो, सो नहीं दिस इज यार, एग्री यार बिजनेस। भाई देखिए, जहाँ जहाँ नहीं मिलती गाड़ी वहां मिलता मारवाड़ी। हाँ। एक और चीज जरूर। आपको कहनी थी कि चाइना में एक जी। प्रोसेस चालू हुई है, हार्वेस्टिंग राइस फ्रॉम सी वाटर, हम्म। growing and harvesting rice from sea water and again turning the water into, you know, uh, uh, for another harvest। ये मैंने एक वीडियो देखा था। तो इसमें क्या आप जी। कमेंट करना चाहेंगे सर? मुझे ज्यादा नॉलेज नहीं, क्योंकि ये क्योंकि अगेन वहाँ राइस में जब मैं
एग्रीकल्चर सेक्टर में आता है, मैं हॉर्टिकल्चर का आदमी हूँ। बट हाँ यस, मैंने ये देखा कि इधर आपके साउथ ईस्ट एशिया में वो फिश फार्मिंग और राइस कल्टीवेशन साथ कर रहे हैं। मैंने ये अच्छा भी अच्छा। देखा है कि वो हाँ हाँ पानी की जब लॉगिंग होती है उस हाँ समय हाँ फिश फार्मिंग कर रहे हैं। हाँ बट ये जो वैरायटी का करेक्टर होगा जो आप बता रहे हैं चाइना में, एक हाँ हाँ मुझे अपॉर्चुनिटी थी बट मैं जा नहीं पाया, मेरा कुछ प्री ऑक्युपाइड था। ये हाइब्रिड राइस की जो लंबे लंबे चावल बनते हैं, तो हाँ वो हाँ कोई बहुत सीनियर साइंटिस्ट उनके नाम पे एक सेंटर बनाया, तो वो फ्री में इंडियंस को बुला के वहाँ ट्रेन देते हैं और वो सोचते हैं कि हमारा कुछ कोलेब्रेशन हो, यहाँ पे हमारे सीड्स बिके। तो लॉट्स ऑफ वेरी हाई क्वालिटी रिसर्च चाइना इज डूइंग, एंड चाइना इमीडिएटली दे कॉमर्शलाइज, दे ब्रिंग इट टू द फील्ड। बट हाँ इंडिया में हमारी जो एग्रीकल्चर रिसर्च है वो वैरायटी रिलीज तक ही रहती है, तो वो हाँ हाँ सलाइन वाटर की कोई वैरायटी होगी तभी वो सस्टेन कर पा रही। हाँ, वही कुछ उन्होंने प्रोसेस किया होगा, कुछ प्योरीफाई किया होगा, तभी तो वो सस्टेन कर रहा। और वो ऐसे है, गुच्छों में है, गुच्छों में, हाँ इन इन यू नो सेगमेंट्स। मतलब एक जैसा वो बना दिया, दूसरा बना दिया, तीसरा बना दिया, जैसे चावल ग्रो करता है वैसे नहीं है। हमारे डीएसआर स्टेट लाइन में लगाते हैं और गुच्छों में हाँ लगा हाँ रहे हैं। हाँ हाँ हाँ। जी। तो ये वो दिखाते हैं, सी वाटर है वो, जो मैंने वीडियो देखा था। तो ये चीजें हैं जो देखिए दुनिया डेवलप कर रही है। और खैर इसराइल जैसी जगह में आपने काम किया और आपने रिसर्च किया, तो उसमें मैं तो दाद देता हूँ, क्योंकि ये किसी को पेटेंट नहीं देते हैं अपने ड्रिप इरिगेशन का। और देखा है जी। मैंने कि कैसे कैसे ये उसको कहते हैं अ, कैसे कैसे रेत में डाल के हरियाली छा जाती है। और कई जगह तो ये लोग एसटीपी भी इस्तेमाल करते हैं। और सर 86% सीवेज वाटर हाँ Israel एसटीपी। recycle, हाँ हाँ that is highest in the world. Second हाँ नंबर पे स्पेन आता है जो 12% वाटर रिसाइकिल करता है। हाँ हाँ तो हाँ यू कैन हाँ अंडरस्टैंड हाउ मच डिफरेंस इज देयर। आई हाँ रिमेम्बर 2013-14 में एक डेलीगेशन आया था इंडिया से। हाँ उस समय हमारे कंट्री को 2012 में हाँ $2 बिलियन की यूएनडीपी से ग्रांट मिली थी टू क्लीन रिवर गंगा। हाँ हाँ एंड जयराम रमेश वाज द मिनिस्टर, उन्होंने आईआईटियंस को बुलाया हाँ और हाँ बोला कि भाई इसका ब्लूप्रिंट बना के दे दो कि गंगा को अगले 8 साल में कैसे क्लीन कर सकते हैं। हाँ 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 So when I was in Israel, I was bit proactive at embassy level, हाँ हाँ agriculture minister level. They used to invite me. जो मैंने कहा आपको, मैं हाँ इजरायली से सेंटर का भी हाँ पार्ट था। तो हाँ दिस मॉडल दे आस्क कि आपको कहाँ लगता है इंडिया इजराइल कोलैबोरेट कर सकते हैं। तो हाँ मैंने ये मॉडल प्रपोज किया था कि इजराइल की क्लीन टेक इंडस्ट्री और एग्रीटेक इंडस्ट्री अगर इंडिया में साथ मिलके आए तो हमारी ये जो पोल्यूशन इशू है रिवर का, ये हाँ, काफी हद तक सॉल्व हो सकती है। हम्म, तो आई जस्ट शेयरिंग द एक्सपीरियंस इन शॉर्ट। तो वो 7-8 लोग का डेलीगेशन था आईटीएंस का। वो इसराइल आए और डिप्टी एम्बेसडर थी, उन्होंने मुझे इनवाइट किया कि घर पे कॉकटेल रिसेप्शन है, आप भी आ जाओ और देखो, इनको बताओ, कुछ नॉलेज शेयर करो कि इसराइल में कैसे खेती करते हैं और ये लोग कैसे वाटर सेव करते हैं। मैंने कहा श्योर, मैं गया और मिला। तो उसमें एक दिल्ली के आईटी दिल्ली के और आईटी कानपुर के थे, वो हेड कर रहे थे आईटी कानपुर के। तो उनसे मैंने पूछा कि सर ये क्या प्लान है, आप इसराइल से क्या लेना चाहते हैं। तो वो कहे यार हमें कुछ नहीं पता, ये कंपनी है, ईटीआई डायनेमिक्स करके कंपनी थी, यूके बेस्ड, इंडियन लोग ही थे, ये हमें वर्ल्ड टूर करा रहे हैं और हमें दिखा रहे हैं किस कंट्री में कैसे कैसे ईटीपी प्लांट है, कैसे रिसाइकलिंग होता है। तो फिर हम प्लान करेंगे, सोचेंगे। तो मैं 2 दिन 3 दिन लोग के साथ बिताया। उन लोगों ने इजरायली कंपनी जितनी थी क्लीन टेक की, उनको प्रेजेंटेशन दी गंगा के ऊपर कि गंगोत्री से निकल के कैसे बे ऑफ बंगाल तक जाती है, कहाँ पोल्यूशन आता है। उनका मॉडल ये था कि पीपीपी मॉडल में आप कानपुर आओ, हम फ्री में लैंड देते हैं, सब कुछ देंगे, जो हमारा टैनिन इंडस्ट्री का एफ्लुएंट है इसको आप लो, इसको प्यूरिफाई करो और हम टैनिन इंडस्ट्री को वापस बेच देंगे, और जो हम्म, रेवेन्यू होगा आप ले आओ वापस। हम्म, तो इसराइलियों ने अपना सर पकड़ लिया कि यार 2400 किलोमीटर सच अ लॉन्ग रिवर, हाउ वन कंपनी कैन क्लीन इट क्योंकि इसराइल तो बहुत छोटा सा कंट्री है। हाँ हाँ तो उन्होंने कहा इसको आप चॉप करो, हाँ आप हाँ अलग अलग चॉप करके हमें दे दो और फिर हम इस पे कुछ अपना काम कर सकते हैं। हाँ हाँ बट देन आई मेट द मिनिस्ट्री ऑफ वाटर का जो था वहाँ का बंदा। तो हाँ उनसे पूछा कि क्या मतलब क्या इम्प्रूवमेंट है, क्या प्रोग्रेस है। बोला इट्स वेरी डिफिकल्ट टू वर्क विद इंडियन गवर्नमेंट। मैंने कहा बता दो आप, मैं तो मतलब बीइंग अ फ्रेंड आई एम आस्किंग। देन ही टोल्ड कि दे आर इंटरेस्टेड इन आवर टेक्नोलॉजी और हमें भी उनको देना है, बट देयर इज अ थर्ड पार्टी सिस्टम व्हिच वी डू नॉट वांट, वी वांट ट्रांसपेरेंट सिस्टम। हम्म, तो समटाइम जी टू जी कोलेबोरेशन जो होते हैं इसलिए नहीं आ पाते हैं पेपर पे। प्लानिंग तो बहुत अच्छी हो जाती है लेकिन वो जमीन पे नहीं उतर पाते। और देखिए 2020 निकल गया, गवर्नमेंट बदल गई, नमामि गंगे और न जाने कितनी चीजें हैं, लेकिन प्रॉब्लम आज भी वो वही है। बट ऐसा नहीं कि इसकी हमारे पास कोई टेक्नोलॉजी नहीं है। देर आर थिंग बट वी हैव टू डू बाई आवर ओन मेथड ऑल्सो। कि एग्रीकल्चर में कॉपी पेस्ट नहीं चलता है। जैसे नहीं मुझे याद चलेगा। है
मैं नहीं कभी करे। दिल्ली गवर्नमेंट में मिला था, यमुना रिवर में भी कोई इजरायली कंपनी आई थी कि यमुना को साफ करेंगे, एंड दे वर नॉट सक्सीडेड, बिकॉज हमारा एफ्लुएंट क्या है, उसका कंपोजिशन क्या है, कितना अमाउंट है, दैट हैज टू बी कैलिब्रेटेड। हम्म। अच्छा, जब ये जो है गंगा में, बनारस में, उस पे तो एसटीपी बन गया है शायद। तो नहीं चलते हैं अभी भी, आप देखेंगे, अभी मैंने देखा था अंजुम करके जो पत्रकार हैं, वो कहीं रिकॉर्डिंग कर रहे थे, उनको रोक दिया गया। हाँ अभी हाँ। सीवेज का पानी गिरता है गंगा में। हाँ, वो तो दिक्कत तो है। राहुल गांधी के, हाँ, वो राजीव गांधी के टाइम से प्लांट वगैरह तो बने हैं, बट हाँ जिस कैपेसिटी में होने चाहिए उस कैपेसिटी पे अभी भी सस्टेन नहीं है वो। और हाँ काफी सीवियर, एक्चुअली ये गंगा का पोल्यूशन का रिवर आपको ऊपर से देखना पड़ेगा। इतने बांध बना दिए गए कि हमारा फ्लो रेट रुक गया है, सबसे हाँ पहली हाँ बात। हाँ तो हाँ जो सीवेज बह जाना था उसका वाटर फ्लो हमारा कम हो गया है, सेडिमेंटेशन हो गया है, डेप्थ नहीं रही गंगा जी में। तो हाँ ये कई चीजें हैं, तो वो ऊपर से नीचे ही झाड़ू लगती है। हाँ, वो आप तो लगती है। पहले हाँ सीढ़ी पे झाड़ू नीचे से ऊपर नहीं लगा सकते। तो हाँ पहले आप ऊपर करंट फ्लो वो देखिए, अभी जितने प्रॉब्लम आ रही हैं ऊपर उत्तराखंड में, आई हाँ थिंक हाँ। वहां से फिर स्टेप बाय स्टेप देखना होगा। और अब तो हर स्टेट की अपना इशू है, तो उस हिसाब से गवर्नमेंट को पॉलिसीज बनानी तो चाहिए। यही मैं मतलब ये स्ट्रेस करना चाहता था। मैं अभी बनारस गया था, तो कहा जी। कि भैया वो तो एसटीपी, वो देखिए एसटीपी लगा है। हाँ, हमने कहा अच्छा लगा है। तो कहते वो सब साफ कर रहा है। मैंने कहा साफ तो कर रहा होगा, मगर आज आपने असलियत बताई, मुझे भी उस दिन कुछ साफ नहीं नजर आया। नहीं सर, हाँ साफ नहीं है। आई नेवर टुक द बाथ इन रिवर गंगेज। आप हाँ हाँ यहाँ के बीएचयू में कुछ डिपार्टमेंट हैं, हाँ आई एम फॉरगेटिंग द साइंटिस्ट नेम, उन्होंने हाँ। पूरा ई कोलाई फॉर्म और सबकी मतलब लेबोरेटरी टेस्ट करके बताया है कि इज लाइक सीवेज वाटर। अच्छा दिस इज ऑल डॉक्यूमेंटेड पब्लिश डेटा। बट कोई इस अच्छा। पर बोलता नहीं है, पॉलिटिकल रीजन है, बट एक इंटेलेक्चुअल एजुकेटेड पर्सन को देख लेना चाहिए। अब गंगा जी के पानी को 6-6 महीने हम पहले रख लेते थे घर में पूजा हाँ, ये करने तो ये में, बात सही अब है, आप सही नहीं रख बात सकते, है। हाँ, नहीं रख सकते हैं। क्योंकि उसमें बैक्टीरियोफाज वायरस होता था जो उसके बैक्टीरिया को खा जाता था। बिल्कुल बिल्कुल लेकिन अब सही। वो सारे बैलेंस गड़बड़ हो गया है, अब उसमें से स्मेल भी आएगी, इसमें अब गंदगी आ जाएगी, तो बहुत मुश्किल है। ना, अब बहुत वो मुश्किल पवित्र है। उतना नहीं रह गया। हाँ हाँ। अच्छा डॉक्टर साहब, एक चीज आपसे आपसे पूछ रही थी। ये तो हो गया, यमुना का भी नहीं हुआ, जी। मगर ये जो आपने प्रोजेक्ट किया है करनाल में, और जो आप लद्दाख में भी कुछ कर रहे हैं सुना। जी, पोटैटो सीड प्रोडक्शन फॉर मैकेन कंपनी हम कर रहे हैं। जैसे हाँ। सर मैं उसमें एक कंपनी और है विस्टा एग्रो करके। हम्म जैसे आपको मैं बताऊं, जो आइसबर्ग लेट्यूस होती है, हम्म। आइसबर्ग लेट्यूस की डिमांड जो है, सबसे बड़े बायर जो आप मैकडोनल्ड में मतलब मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ कि कितने हम पीछे हैं और कहाँ का इंटरवेंशन की जरूरत है इंडिया में, ऐसे इंडिजिनस कंपनियां की। हाँ हाँ। जो मैकडोनल्ड, बर्गर किंग, सबवे, ये सारी यूएस बेस्ड कंपनी है, जी मल्टीनेशनल जी। कंपनी है। हाँ हाँ। और इन्होंने एक कंपनी को हायर किया है, विस्टा एग्रो। तो विस्टा एग्रो कंपनी इन सब कंपनियों को फ्रेश फ्रूट एंड वेजिटेबल्स जो जो उनको लगता है, आलू हाँ, है, प्याज है, टमाटर, ये अक्रॉस द ईयर को सप्लाई करते हैं फिक्स रेट पे। जर्म ठीक है। फ्री। तो वही भी, हाँ, अब ये कभी भी जो मैकडोनल्ड में आप बर्गर खा रहे हैं तो कभी टमाटर जाके मंडी से नहीं लाते हैं, इनका हाँ। सब कुछ बैकवर्ड सप्लाई चेन है, तो ये अच्छा, वहाँ कंपनी बैकवर्ड सप्लाई चेन अमेरिका में से काम आता है। करती है। अमेरिका से आता है। नहीं नहीं, इंडिया में ही होता है सर, हाँ हाँ। इंडिया में ही होता है, लेकिन वो कोई कंपनी है वो करती है, बैकवर्ड सप्लाई चेन देखती है। मगर ये जैसे आपके। मैं जो काम, हाँ, ठीक, चलिए चलिए, मैं आप बता बोलिए। देता हूँ फिर आप समझ जाएंगे। जैसे हाँ हाँ आइसबर्ग लेट्यूस है, हाँ आइसबर्ग लेट्यूस एक विंटर की क्रॉप होती है, जो आप बर्गर खाते हैं उसमें एक हरा सलाद पत्ता होता है हाँ ना, हाँ हाँ उसको हाँ लेट्यूस बोलते हैं। हाँ हाँ अब वो डेली का कंजम्पशन करीब 8 टन का है, 8 टन हाँ। लेट्यूस डेली चाहिए इस विस्टा एग्रो को, और ये फर्दर सप्लाई चेन करते हैं जम्मू कश्मीर से कलकत्ता तक, जितने भी इनके आउटलेट्स हैं। हम्म। तो ये 4 महीने करीब करनाल के पास एक जगह है कुरुक्षेत्र, ये हम्म वहां पे करते हैं, हम्म क्योंकि नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी इसका टेम्परेचर करीब 25 से 30 के बीच में होता है। तो ये उस हम्म टेम्परेचर पे अच्छी क्रॉप हो जाती है। तो ये हम्म कंपनी वहां पे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करती है। हम्म और इनका जो प्रोसेसिंग प्लांट है वो सरहिंद में है, पंजाब में। तो हम्म फार्म से सीधे वो ले जाते हैं वहां पे, इसके मैनुअल ग्रेडिंग करते हैं, काटते हैं, चॉप करते हैं, क्लोरीन वाटर में वॉश करते हैं, 1 किलो के बैग में पैक करते हैं, इसको मैप पैकिंग बोलते हैं। फिर कोल्ड सप्लाई चेन में चलाते हैं। फिर वहां से जब भी आप बर्गर खाएंगे मैकडोनल्ड में ना, तो एक एक पन्नी खोलते हैं, उसमें से वो डालते हैं श्रेडेड हम्म लेट्यूस के पत्ते, ये हम्म। वहीं से आता है सारा। अब अच्छा। ये है एक चैलेंज कि अब मार्च के बाद हम कैसे पैदा करें, क्योंकि उस लोकेशन पे तो गर्मी हो जाती है। हाँ हाँ तो हाँ। ये अगले 4 महीने कुल्लू चले जाते हैं, हिमाचल अच्छा प्रदेश। अच्छा। फिर ये कुल्लू में प्रोडक्शन करते हैं आपका अप्रैल, मई, जून, जुलाई तक। हाँ 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 और जैसे ही ये जुलाई में वहां पे मानसून आ जाएगा अब, हाँ हाँ। तो ये भाग जाते हैं लाहौल स्पीति, बहुत क्योंकि लाहौल बढ़िया। में बारिश नहीं होती। हम्म। फिर 4 महीने ये सितंबर, अक्टूबर, नवंबर हाँ तक ऊपर लेंगे।
हाँ हाँ इस तरीके से इनका सप्लाई चेन है विद इन कंट्री, डिफरेंट एग्रोक्लाइमेटिक जोन, सेम क्रॉप, दिस हाँ इज हाँ कॉल्ड एग्री बिजनेस। हाँ, क्योंकि तो लाहौल हम स्पीति अभी आइसबर्ग ले, जी, लाहौल स्पीति रेन शेडो रीजन में है। हाँ, तो वहां पे हो जाती है बरसात में, तो वो वहां से लाते हैं, फिर उसकी कॉस्ट बढ़ जाती है, लेकिन हम्म, सप्लाई को वो मेंटेन रखते हैं। हम्म, अभी आप देखेंगे आने वाले टाइम में मैक्सिमम जो एग्रीकल्चर है हम्म, वो लाहौल स्पीति और लद्दाख में है, क्योंकि वो एरिया अभी आज तक अनटैप है, लैंड भी काफी अच्छी है। पानी का इशू है, जो ग्लेशियर का पानी होता है उस पानी से हम खेती करते हैं। अभी मैं आलू कर रहा हूँ, हाँ लेट्यूस इंडस कर का। रहा हूँ, तो जो ग्लेशियर से पानी निकल रहा है उस पानी को हम खेती में यूज कर रहे हैं। हाँ हाँ, वो तो प्योर वाटर है। मगर ये आपका आप जी, कहते हैं जो होता है कल्टीवेशन कहाँ पे, ले में होता है या आलची में? तो मैं जो मेरी जो प्रोजेक्ट साइट है, मैं वहाँ पे जो मॉन्क होते हैं, मोंस्ट्री के जो होते हैं, हम्म, उनके पास काफी लैंड होती है, हम उनसे लीज पे लेते हैं। तो मेरी जो एग्जैक्ट लोकेशन है वो थिकसे के पास है, ले एयरपोर्ट के हाँ ठीक पास से में, वो, हाँ समझ गया। थिकसे। ठीक हाँ से। जी, तो मैं थिकसे में कर रहा हूँ, करीब हमारे पास 30-35 एकड़ लैंड है हमारे क्लाइंट्स की है, एंड आई एम हम्म। देयर लाइक कंसल्टेंट, सो वी आर डूइंग द थिकसे। आप डॉक्टर साहब कभी जाएंगे ले तो अलची भी एक जगह है, वहां पे आपको जी, जुलाई के महीने में इतनी मीठी मटर मिलेगी। और हाँ, शलगम, हम्म, शलजम जिसको कहते हैं, वो मैं हैरान था। मगर वहाँ का सॉइल कंडीशन कुछ ऐसे हैं। अब जुलाई में कहाँ हम लोग मीठी मटर खा सकते हैं? बिल्कुल, अब मटर जो है वो जाड़े का वो है फल, कहते हैं वो होता है क्रॉप। पसंद है, तो जी, अलसी में खैर थोड़े लोअर है। ये तो आप 11,800 की बात कर रहे हैं। अलसी थोड़ा 9,000 फीट हम्म, पर है। अच्छी अच्छी जगह है, अच्छा, तो वहाँ का भी जरा देख लीजिए। अब ये हमको मालूम नहीं करगिल और उसके आसपास एरिया कैसे हैं। हालांकि मैं गया था वो वहाँ पे पानीखर, पारकाचिक, वहाँ पे भी पानी की कमी नहीं है। झरने बहुत हैं हम्म, और फील्ड्स भी हैं। जी, तो वो भी, मगर वो थोड़ा दूर है कारगिल से। हम्म, और आप लोग तो डायरेक्ट ले पहुंच जाते हैं हवाई हवाई जहाज से। तो ये जी, भी बाई वहाँ, एयर जाते हैं, हाँ बिल्कुल, वो तो वहाँ की खुमानी और ये एप्रिकॉट भी बड़ा फेमस खुबानी है। बात है, तो उसको जी, भी जी। काफी, और यहाँ पे आते आते बहुत वो आसमान छूने लगते हैं। तो आज तो हमने आप, क्वालिटी है, न्यूट्रिशन वैल्यू प्योर ऑर्गेनिक है, क्योंकि इंसेक्ट फ्री जोन है, तो कोई बीमारी वगैरह भी वहाँ हाँ ज्यादा ये नहीं बात होती, सही सबसे है, ये अच्छी बात बात सही यह है, है। ये बात सही, ये बात सही है। नहीं, आज हमने बहुत कुछ सीखा आपसे। और ये हम चाहते हैं कि आप देशवासियों को और युवा को क्या अपना मैसेज देना चाहेंगे कि भाई एग्रीकल्चर, हम सोचते थे खेती खेती नहीं है, बहुत कुछ है खेती में। तो हमारे पास 5 मिनट हैं, तो आप जरा कुछ बता दीजिए डॉक्टर साहब, इसके अपना मैसेज दीजिए बस युवाओं के लिए, हम लोग के लिए, मेरा सबके। हाँ। कोविड के बाद से, आई थिंक कोविड वाज द वन ऑफ द ब्लेसिंग इन डिस्गाइज जो बोलते हैं, इसने रियलाइज करा दिया कि पूरी जिंदगी जो है दो चीजों में बटी हुई, एसेंशियल और नॉन एसेंशियल। हम्म, अगर आने वाली जनरेशन हम्म, इसेंशियल सर्विसेज में काम करती है, हम्म, तब तो उनका भविष्य सुरक्षित है। हम्म, अगर नॉन एसेंशियल चीजें हैं, जैसे गेमिंग है, कंप्यूटिंग है, पता नहीं, पैसे वहां भी हैं, बहुत अच्छे पैसे हैं, लेकिन एग्रीकल्चर ऐसा कभी रिसेशन फ्री बिजनेस है। हम्म, और इंडिया कैन बी ग्लोबल फूड फैक्ट्री, हमारे हम्म, पास अब अपूर्व Yeah, संभावनाएं I'm हैं, just इतना बड़ा देश है। interjecting. हाँ I'm just प्लीज, interjecting. We are running out of time. हाँ, 5 मिनट है, अभी 5 मिनट है। ओके, 4 मिनट हो गए, चलिए डॉक्टर साहब चलिए। ठीक। हाँ। तो उसमें यही है कि सर, जो बच्चों को जो एग्रीकल्चर सेक्टर में आने वाले टाइम में बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन होना है। हम्म, कॉर्पोरेट सेक्टर एग्रेसिवली इज कमिंग नाउ इनटू एग्रीकल्चर, अभी आप हम्म, देख रहे होंगे अडानी, रिलायंस, बड़े बड़े कॉर्पोरेट सेक्टर आ रहे हैं। एंड देयर इज अ ह्यूज पोटेंशियल ऑफ द जॉब इफ यू हैव द स्किल। हम्म, इंसान दो तरीके से कमा सकता है, या तो गर्दन के नीचे का हिस्सा यूज करे एज अ सर्विसमैन, एज अ लेबर, या हम्म, गर्दन के ऊपर का हिस्सा। तो हाँ यू हाँ हैव टू यूथ हैज टू डिसाइड कि वेदर दे आर हाँ अर्निंग बाय द ब्रेन और दे आर अर्निंग बाय द बॉडी। हाँ सो हाँ अगर हाँ आपके पास जो नॉलेज है, जैसे अभी हम ये पानी से कहाँ लड़ रहे हैं, टीडीएस से लड़ रहे हैं, और फिर खेती आती है बाद में। हाँ हाँ तो हाँ अगर आप बेसिक चीजों माइक्रो क्लाइमेट मैनेजमेंट समझ पाते हैं, हाँ हाँ उसको कोरिलेट कर पाते हैं, उसका हाँ हाँ एल्गोरिथम बना पाते हैं, हाँ हाँ ऑफ सीजन प्रोडक्शन कर पाते हैं, हाँ 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 जो पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट की टेक्नोलॉजी, उसके सेल्फ लाइफ बढ़ा पाते हैं, हाँ हाँ आप प्रोसेसिंग करके वैल्यू एडिशन कर पाते हैं। नाउ आई एम वर्किंग ऑन द टर्मरिक प्रोजेक्ट विद द हाँ मिजोरम। मिजोरम हाँ में बहुत अच्छी हाँ टर्मरिक जिंजर होती है, एंड हाँ दे हाँ आर हाँ नॉट एबल टू हाँ गेट द गुड प्राइस। हाँ तो हाँ हाँ उसमें आप क्या कर सकते हैं? तो हाँ मेरा जो सबसे बड़ा स्ट्रेंथ रहा है कि इंडिया को अलग अलग राज्यों में घूम के जितना मैंने समझा कंट्री को, उसमें हाँ मुझे ह्यूज पोटेंशियल लगता है। हाँ, एग्रीकल्चर एक जगह बैठ के कुएं के मेढक जैसा सिस्टम नहीं है। यू विल हम्म, बी नेवर एबल टू मेक द मनी, आपको हम्म, कुछ नया करना होगा, रिस्क लेना होगा,
और अगर आपके पास वो नॉलेज है, वो स्किल है, तो आप कभी खाली नहीं बैठेंगे, यू कैन मेक ए गुड मनी। लेकिन वो स्किल और वो जो नॉलेज है, वो क्लासरूम में बैठ के यूट्यूब और उस पर नहीं होती। जैसे आजकल ना के ना युवा है, मेरे को डेली फोन आता है, वो हाइड्रोपोनिक के बारे में पूछेंगे। हाइड्रोपोनिक इज नॉट इकोनॉमिक वायबल इन इंडिया, नो लेकिन जो कंपनियां हैं वो यूट्यूब पे ऐसे प्रमोट करती है कि हर आदमी को लगता है कि हाइड्रोपोनिक में तो ऑर्गेनिक से बेटर है। तो दिस इज अ बेसिक फंडामेंटल कि इंडिया में जो सही नॉलेज है ना, वो डिसिमिनेट बहुत धीरे धीरे होता है। गलत नॉलेज प्रोपोगेंडा बन के वायरल हो जाता है। कमर्शियली तो आई पॉसिबल नहीं वांट है। कि जी, तो बच्चों से मैं यूथ से ही कहूंगा कि आप प्रैक्टिकल नॉलेज लीजिए, कंसर्न बंदे से इसका नॉलेज है उसको देखिए। ये डिजिटल नॉलेज बड़ा रिस्की होता है। ये कई लोगों को मैंने देखा है, आजकल के युवा बहुत पैसा लगा के और फिर बाद में आते हैं, कहते हैं कि व्हाट आई शुड डू नाउ। तो वो चीज ना करें। ये हाईटेक एग्रीकल्चर में पैसे जरूर लगते हैं, बट वो रिटर्न भी उसी हिसाब से ज्यादा है। बट वो कैलकुलेटेड रिस्क ले, प्रैक्टिकल नॉलेज ले। कोई नॉलेज फ्री में जो मिलता है वो हमेशा रिस्की होता है, जस्ट लाइक इंश्योरेंस। कि आपको अगर फ्री में कोई इंश्योरेंस की सलाह दे रहा है, तो उसमें कहीं ना कहीं वो गेम होगा। तो उस हिसाब से मुझे लगता है कि पोटेंशियल बहुत ज्यादा है। बच्चे आजकल क्या डिग्री के पीछे भागते हैं और सोचते हैं कि हमें डिग्री मिल गई तो हमें जॉब मिल जाएगी। इट इज नॉट ट्रू। नंबर आपके इंपॉर्टेंट नहीं, आने टाइम में आपकी स्किल इंपॉर्टेंट स्किल और आपका व्यवहार कैसे आप आगे करते हैं। बीइंग स्मार्ट इज इम्पोर्टेंट। आजकल यही चक्कर है ना। तो है। डॉक्टर जी साहब जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और उम्मीद है कि आप दूसरे शो पे भी आएंगे और मिलेंगे हम लोग। और आज जो जरूर आपने सर। ज्ञान दिया है वो बहुत बहुत विस्तार से दिया है। और उम्मीद है कि हम कहीं ना कहीं आपके साथ काम करें, चाहे कच्छ में हो चाहे लेह में है, चाहे कहीं। और मौका देंगे तो जरूर हाजिर होंगे। मोस्ट तो वेलकम सर, किसी भी साइट पे कभी हो आप आइए। अभी मैं ले मैं करूंगा, नेक्स्ट मंथ हाँ जा रहा हूँ। हाँ पोटैटो का चलेगा। आई वुड बी हैप्पी टू शेयर सम फोटोग्राफ्स एंड इमेजेस और शॉर्ट वीडियो बना के अपने जेना ग्रुप में शेयर करूंगा। हाँ हाँ और आई होप कि इससे लोगों को नॉलेज अवेयरनेस ज्यादा है। आई थिंक हाँ। उससे कहीं ज्यादा कंज्यूमर लोगों को एजुकेट करने की, जैसे हम जो आटा खा रहे हैं या तेल पी रहे हैं सरसों का, या हम्म, दूध खा रहे हैं, इसमें बहुत मिलावट है। तो कंज्यूमर को एजुकेट करने के लिए हेल्दी लाइफ है, तो वो बहुत जरूरी है, वो कहीं नहीं हो रहा है। मुझे लगता है कि वी नीड सच काइंड ऑफ फोरम जो अनबायस्ड होकर प्रैक्टिकल और साइंटिफिक नॉलेज को हम डिसिमिनेट कर पाए। हम्म। तो उम्मीद है कि आपका कॉल, ये जो है आपका शो, एक लंबा फीचर बन जाएगा ऑन क्वालिटी ऑफ फूड, क्वालिटी ऑफ ग्रेन्स, क्वालिटी ऑफ ग्रोथ ऑफ एग्रीकल्चर। और हम चाहते हैं कि आप हमारे साथ जुड़े रहें, चाहे कहीं हो, चाहे कच्छ में हो, चाहे लद्दाख में हो, जहाँ पे। जी और आज आपका बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। और जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। हाँ आपने इतना टाइम दिया, और आई होप नहीं, अच्छे लोगों तक अच्छा मैसेज पहुंचे। यही हमारा पर्पज है। हम तो हैं ही एक्सटेंशन के आदमी। आपने हमें फोरम दिया अपनी एक्सटेंशन एक्टिविटी को बढ़ाने के लिए। धन्यवाद। धन्यवाद। थैंक यू सो मच। हाँ।